Hello students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are doing well. So in our today's class, we will learn another new topic in EVS. Without wasting time, let's start. So this is our chapter 18, Land of India and its monuments. So today we will learn about the land or the different geographical regions of India and its monuments. Monuments you all know, जो हमारी इंडिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं. So in this chapter we will learn about it. So let's start. Physical features of India. India is a vast country. The land of India includes hills, mountains, plains, desert, plateaus, rivers, etc. They are the physical features of India. So इसमें क्या बताया गया है that India is a vast country. Vast means India is a big country. The land of India includes hills, mountain, desert, plateaus, rivers. They are the physical features of India. See ये जो इंडिया के अंदर different mountains, plateaus, rivers, ये सब क्या है? ये सब physical features है हमारे किसके? इंडिया के. India is the seventh largest country in the world in terms of area and second largest country in terms of population. See, India is the seventh largest country in terms of area. According to its area, India कौन से नंबर पे आता है? 7th नंबर पे आता है in the world, and according to its population, India comes on second number. It is the second largest country in terms of population. It lies to the north of the equator. See, equator you all know, equator imaginary line जो होती है हमारी अर्थ पे, जो हमारी अर्थ को डिवाइड करती है इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, राइट. सो जो हमारी इंडिया है वो जो हमारी अर्थ है वो कहाँ पे है हमारा इंडिया? इट लाइज टू दी नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. जो हमारा इक्वेटर है उसकी नॉर्थ साइड में हमारी अर्थ में हमारा इंडिया लोकेटेड है. सो दिस इज़ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. ये पॉलिटिकल मैप शो किया गया है इंडिया का, जिसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स हमें शो की गई है इंडिया की. एज यू ऑल नो डैट हाउ मैनी स्टेट्स आर इन इंडिया? देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया. ओके, पहले 29 थी, बट अब जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉट अ स्टेट, नाउ इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी. सो नाउ इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 union territories. Okay, so keep that thing in mind. Now come to the geographical regions of India. India is divided into 4 major geographical regions: the Great Himalayan Mountain Range, the Northern Plains, the Thar Desert region, and the Southern Peninsula. So there is a fact file. India is the largest democracy in the world. See, जो हमारा इंडिया की डेमोक्रेसी है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है. It is the largest democracy in the world. Okay, so today we will learn about the 4 geographical regions of India. So let's start. See, first one is the Great Himalayan Mountain Range. हिमालय के बारे में आप सबने सुना होगा, द ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंज. सो हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है? हिमालयाज. दे आर ऑल्सो वन ऑफ द world's youngest mountain range. It is also one of the world's youngest mountain range. Himalayan range extends for about 2400 kilometers, approx 1500 miles from the northernmost to the northern east part of our country. ये जो हमारी कंट्री है, हमारा इंडिया है, एज यू ऑल नो, से जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ से बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट से स्टार्ट होता है ये हिमालयन रेंज. और कहाँ तक है ये, कहाँ तक फैला हुआ है? नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है. ये जो ब्राउन शेड करी गई है इंडिया में इस मैप में, ये पूरा हमारा क्या है? हमारा ग्रेट हिमालयज है, हमारी हिमालय माउंटेन रेंज है. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, द माउंट एवरेस्ट, इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द हिमालय. सी, हिमालय के अंदर जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक है कौन सी? माउंट एवरेस्ट, वो भी आती है. ऑल्दो द माउंट एवरेस्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ सिचुएटेड इन नेपाल. सी, जो माउंट एवरेस्ट है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? नेपाल में. देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालयाज.
हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल और द मिडल हिमालयाज, शिवालिक और द आउटर हिमालय। सी, ये जो पूरा ब्राउन शेड आपको एरिया दिखाया गया है, शो किया गया है इस मैप में, ये पूरा हमारा हिमालय माउंटेन रेंज तो है ही, बट ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ हिमाद्री द ग्रेटर हिमालय। सी, जो ये टॉप मोस्ट पार्ट है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग है, ये टॉप मोस्ट पार्ट कहलाता है हिमाद्री द ग्रेटर हिमालय बोलते हैं हम इन्हें। फिर ये जो मिड पार्ट है, जिसमें ये हमारा ये एरिया आ जाता है बिल्कुल मिड पार्ट, वो कहलाता है हमारा क्या, हिमाचल और द मिडल हिमालय, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश ये सब कवर हो जाता है। फिर बिल्कुल ये नीचे का रीजन जो है, ये जो एरिया है नीचे का, ये कहलाती है हमारी शिवालिक रेंज और द आउटर हिमालयास। आउटर हिमालयस बिल्कुल ये नीचे का हिमालयस। सो ये 3 पार्ट्स है हिमालय की। सबसे टॉप मोस्ट पार्ट कहलाता है हिमाद्री द ग्रेटर हिमालयास, मिडिल पार्ट कहलाता है हिमाचल और द मिडल हिमालयास, और बिल्कुल लास्ट पार्ट कहलाता है शिवालिक और द आउटर हिमालयास। ओके, सो ये आपको याद रखना है। ये थी हमारा द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। There is another factoid that India got its name from the Indus Valley civilization. So ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। सो जो हमारे इंडिया, हमारी जो कंट्री का नेम था, वो हमें मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो सभ्यता थी, उससे हमें अपना कंट्री का नेम मिला था। Now second is the northern plains. The northern plains lie between the Himalayas and the southern peninsula. They stretch across northern India for about 2400 km long and are 240 to 320 km wide. See, ये जो हिमालय माउंटेन रेंज है, उसके नीचे आते हैं ये नॉर्दर्न प्लेन्स। इस साइड पे बिल्कुल हमारी हिमालय माउंटेन रेंज थी, यहाँ पे आते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। सी, ये एरिया बताया गया है कि कितना कवर करते हैं। इट इज़ 2400 किलोमीटर लॉन्ग और कितने वाइड है, 240 to 320 वाइड है ये। This region forms the highest alluvial plain in the world. सी, alluvial soil जो होता है, उसके बारे में बताया गया है। आपने अपने कितने डिफरेंट सोइल पाए जाते हैं आपने पढ़ा था। सो दिस रीजन फॉर्म्स द लार्जेस्ट alluvial प्लेन इन द वर्ल्ड। प्लेन एरियाज जो है, लार्जेस्ट alluvial प्लेन फॉर्म करता है ये एरिया। द alluvial प्लेन इज़ लैंड फॉर्म्ड ऑफ सॉइल लेफ्ट बाय रिवर्स। सी, यहाँ पे हमें बताया भी गया है कि व्हाट alluvial प्लेन इज, इट इज़ अ लैंड फॉर्म बाय द सॉइल लेफ्ट बाय रिवर्स। सी, ये जो रिवर्स हैं, ये देखो, ये रिवर्स हमें लेबल भी करके दिखाई गई हैं। चंबल, बेटवा, सन, कोसी, गंडक, घाघरा, गंगा, चेनाब, रावी, झेलम, सतलुज, इंडस, ये जितनी भी रिवर्स हैं, इनके आसपास जो सोइल होता है, उससे सोइल के अंदर फर्टिलिटी आती है और ये एलुवियल सोइल होता है। सो इसलिए ही इस एरिया को एलुवियल प्लेन बोला गया है, और ये एलुवियल प्लेन लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन है पूरे वर्ल्ड में। द सोइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ वेरी फर्टाइल एंड इज़ मच यूजफुल फॉर डिफरेंट फार्मिंग पर्पसेस। एज आई टोल्ड यू कि ये जो एरिया है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी रिवर्स हैं, सो इसकी सोइल में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी पाई जाती है, जो हमारी फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है। दिस रीजन इंक्लूड्स द वैली ऑफ ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड इंडस rivers and their tributaries. The majority of our population lives in this region. सी, इसमें बताया गया है कि ये जो रीज़न है, ये जो एरिया है, इट इंक्लूड्स द वैली। ये कौन कौन सी मेन जो रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, इसको इंक्लूड करता है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन सी मेन रिवर वैलीज पाई जाती हैं, कौन कौन सी घाटी पाई जाती है, कौन कौन सी नदियों की, ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस, ये मेन रिवर्स हैं। एंड ट्रिब्यूटरीज हम सहायक नदियों को बोलते हैं, मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो इन बड़ी नदियों में मिल जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। सो जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तो मेन रिवर्स हैं ही, इनमें ये छोटी छोटी रिवर्स मिलती हैं, जैसे यमुना, चंबल, कोसी, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं इनकी।
द मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन दिस रीजन। ये जो मेजोरिटी ऑफ हमारे ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन दिस रीजन। सी यहाँ पे हमारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सारा यहाँ पे कवर होता है, राइट। फैक्ट फाइल, इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट एंड कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशंस। सिविलाइजेशंस मीन्स क्या होता है इन हिंदी, वी कॉल्ड इट सभ्यता। सो इंडिया की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो सबसे पुरानी है, लार्जेस्ट है और कॉन्टिन्यूस है, मीन्स वो अभी तक चलती आ रही है। नाउ मूविंग फर्दर, थर्ड इज द थार डेजर्ट रीजन। The Thar Desert lies in the western part of the northern plains. It covers much of the state of Rajasthan and parts of Gujarat. सी जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जैसे कि दिखाया गया था आपको इस मैप में, उसकी वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न साइड पे क्या है हमारा थार डेजर्ट रीजन है। इट कवर्स मच ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। राजस्थान में है ये, एंड ये गुजरात के भी कुछ पार्ट कवर करता है। So there's another fact file. The Thar Desert is the largest desert of India. See, इंडिया का सबसे largest desert कौन सा desert है? Thar Desert. The population of this region is very less. This region is very rich in its art and architecture. There are large number of magnificent forts and places. See, ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, बट यहाँ पे जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है, वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एंशियंट फोर्ट्स ज़्यादा है। मैग्निफिसेंट मीन्स अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव फोर्ट्स, शानदार फोर्ट्स और पैलेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कलाकारी इतनी अच्छी हुई होती है, आर्ट का एक पूरा नमूना शो किया गया होता है। सो इट इज़ वेरी रिच इन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, this region, the Thar Desert region. Now the last geographical region, Southern Peninsula. See, पेनिसुला हम उस एरिया को बोलते हैं जो वाटर से सराउंडेड होता है। सी साउथ में ये देखो, इस साइड भी वाटर है, इस साइड भी वाटर है, एंड नीचे वाली साइड भी पूरा वाटरी होता है ये एरिया। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट पेनिसुला। The southern peninsular regions of the South India is all surrounded by the mountains. इस एरिया में माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं। The विंध्याचल माउंटेन लाइज इन नॉर्थ। विंध्याचल माउंटेन्स कहाँ पे है? नॉर्थ की तरफ है, ऊपर स्टार्टिंग में ही। इट सेपरेट्स द डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन से सेपरेट करता है डेक्कन प्लेट्यू को। द डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द सदर्न पेनिसुला। सी, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो क्या फॉर्म करता है? मोस्ट ऑफ द सदर्न पेनिसुला। ये जो पूरा हमारा साउथ का पेनिसुलर रीजन है, ये पूरा जो एरिया है वो पूरा हमारा डेक्कन प्लेट्यू में कवर होता है। इसमें हमारी ईस्टर्न घाट, ये जो रिवर्स भी बताई गई हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नीलगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट, ये सब इसमें कवर हो जाती हैं। ये था हमारा सदर्न पेनिसुलर रीजन। ओके, पेनिसुला उस एरिया को बोलते हैं, एज आई टोल्ड यू, जो वाटर से सराउंडेड होता है, राइट। सी, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है एंड यहाँ पे अरेबियन सी है, तो ये पूरा वाटर से सराउंडेड है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट पेनिसुला। ओके, सो this is all about the geographical regions of India. We learned about the Himalayan mountain range, northern plains, and the Thar desert region, and as well as the southern peninsula. So this is all about today. I hope you understood all the things. So thank you and take care.